खबर यह है कि आमिर खान बेशक टीवी के विज्ञापन में अतुल्य भारत की छवि और अतिथि देवो भव की तहजीब का प्रचार करते हैं, लेकिन इन दिनों देश के माहौल से परेशान है। बॉलीवुड का पीके आखिर राजा हिंदुस्तानी अपने ही हिंदुस्तान में परेशान क्यों है? ये सवाल आप भी सोच रहे होंगे। बॉलीवुड से लेकर सियासत तक आमिर के बयान पर यही सवाल हो रहा है। फिल्में ही नहीं, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट का ये विज्ञापन ही आमिर खान को बॉलीवुड के तमाम सितारों से एक अलग मकाम पर खड़ा करता है। जिम्मेदार और सामाजिक सरोकार से जुड़े गंभीर एक्टर की इमेज वाले आमिर खान अपने विज्ञापन में बेशक भारतीय तहजीब की आन बान शान के एम्बेसडर नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में आमिर को अब भारत सहनशील देश नजर नहीं आता। Your answer, do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm, there's another part you feel depressed, you know, you feel low, you feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. आमिर दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में शामिल थे। उनसे देश में छिड़ी असहिष्णुता की बहस पर राय मांगी गई तो आमिर ने अपनी फिल्म निर्देशक पत्नी किरण राव का हवाला देते हुए कहा कि हाँ, अब उन्हें भी फिक्र होने लगी है। राजा हिंदुस्तानी को अब हिंदुस्तान की फिजाओं में वो बात नजर नहीं आती जो पहले कभी उन्हें महसूस हुआ करती थी। A lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, you know, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And you know, it's for any society, it's very important to have a sense of security. आमिर खान कहते हैं कि देश में बुरे हालात पहले भी रहे, लेकिन किसी और बुरे दौर की दुहाई देकर, दूसरों की गलती गिनाकर कोई अपने गलत कामों से बच नहीं सकता। Where one political party, in this case the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make right what's happening now. And what happened in 84 was disastrous. You know, what happened in 1984 was horrendous, and what is happening, you know, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step, whether they're on the state level or at the center, make statements which are reassuring to us as citizens of the country. That's what we look for. Yeah. आमिर की ये बेबाक बातें एक ऐसे मुद्दे पर थीं जिस पर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। ये बहस कला, साहित्य और सिनेमा से लेकर सियासत तक में चल रही है। ऐसे में आमिर खान ने देश के मौजूदा हालात पर सवाल उठाकर इस बहस को और गर्म कर दिया है। आज तक ब्यूरो। सुरक्षा और सहनशीलता की कमी को लेकर पिछले कुछ समय से देश में छिड़ी बहस में शाहरुख खान, सलमान खान अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन आमिर के बयान देते ही बॉलीवुड में हलचल मच गई। बॉलीवुड के सबसे डिफरेंट खान यानी आमिर ने जो सवाल उठाया है, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर जो फिक्र जताई है, वैसी ही फिक्र 2 हफ्ते पहले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी जता चुके हैं। हालांकि बॉलीवुड की खान तिकड़ी के तीसरे खान यानी सलमान बाकी 2 खानों से इत्तेफाक नहीं रखते। आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है। थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। जो अनसेक्युलर आवाजें हैं,
वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं, सबके सब बराबर हैं. My mother is Shushila Charak. My father is Salim Khan. You don't My wanna name is Salman Khan. Her name is Sonam Kapoor. यहाँ पर कौन बैठे हैं? हेलो, कोई फर्क पड़ता है सर? हाँ सलमान आपको भाई, कोई फर्क पड़ता है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं सर. हिंदुस्तानी है सबके सब. कद और स्टारडम में ये तीनों खान कमोबेश एक बराबर हैं और इनके बयानों से जाहिर है कि असहिष्णुता के मुद्दे पर बॉलीवुड की राय पहले से बंटी हुई है. अब आमिर के बयान से इत्तेफाक और नाइत्तेफाकी रखने वालों की भी लंबी कतार लग गई है. जब देश की सबसे सरगर्म बहस से आमिर जैसा संजीदा कलाकार जुड़ा तो बहस भी बड़ी हो गई. फिल्म एक्टर परेश रावल ने ट्वीट किया, अगर हम भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं तो उसे छोड़ने की बात कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अगर कुछ और मानते हैं. आमिर ने अब तक इसी भारत में काम करके स्टारडम और करोड़ों कमाए हैं. मशहूर एक्टर और एक्टिविस्ट अनुपम खेर ने भी आमिर के बयान से नाइत्तेफाकी जाहिर की है. अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा, आमिर आपको भारत असहिष्णु लगता है तो भारत के 20 लाख लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? क्या वो भारत छोड़ दें या सरकार बदलने तक इंतजार करें? आमिर, आपके लिए इनक्रेडिबल इंडिया, इंटॉलरेंस इंडिया कब से बन गया? क्या पिछले 7-8 महीनों में? अतिथि देवो भव. क्या आपने किरण से पूछा कि वो किस मुल्क में जाना चाहती है? क्या आपने उन्हें बताया कि भारत ने ही आपको आमिर खान बनाया है? फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने भी ट्वीट के जरिए आमिर को निशाने पर लिया है. आमिर खान, मैं खुले मंच से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किरण जी को भारत में ऐसा क्या असहिष्णु दिखा कि वो भारत छोड़कर जाना चाहती हैं? आमिर की बात से नाइत्तेफाकी रखने वालों का कहना है कि एक कलाकार तो सिर्फ कलाकार होता है और किसी भी एक्टर का स्टारडम उसके फैंस से होता है. फैंस सिर्फ चाहने वाले होते हैं, किसी भी मजहब से परे. ऐसे में आमिर खान या उनकी फिल्म निर्देशक पत्नी किरण राव को ऐसा क्यों लगा कि भारत में सहनशीलता अब कम होने लगी है, जबकि आमिर की फिल्म को आज भी हर मजहब का दर्शक देख रहा है. आमिर के बयान का विरोध करने वालों का कहना है कि देश में होने वाली जिन घटनाओं को लेकर आमिर या शाहरुख ने सवाल उठाए हैं वो पूरे भारत की तहजीब नहीं बल्कि चंद लोगों की करतूत है. और ऐसे लोग हर मजहब, हर समाज, हर मुल्क में हो सकते हैं. ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि जिस देश ने आमिर की ये शख्सियत बनाई है, अपने उसी भारत को अब शक की नजरों से क्यों देख रहे हैं आमिर खान? सवाल आमिर खान के नजरिए से सही या गलत होने का भी है. आज तक ब्यूरो. आमिर खान एक संजीदा कलाकार माने जाते हैं. उनके बयान की आंच सियासत तक पहुंची. बीजेपी का कहना है कि आमिर ने भारत का अपमान किया. कांग्रेस भी आमिर के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती. हालांकि केजरीवाल और एनसीपी को आमिर की बात सही लगती है. दादरी कांड, कलबुर्गी कांड, कालिक कांड. पिछले कुछ महीनों में देश में हुए ये 3 कांड ही असहिष्णुता पर उस बड़ी बहस की जड़ हैं, जिसमें अब आमिर खान का नाम भी जुड़ गया है. इन घटनाओं के विरोध में साहित्यकारों ने पुरस्कार लौटाना शुरू किया तो मानो होड़ सी लग गई. कई साहित्यकारों ने अवार्ड लौटाए तो कई कलाकार भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए आगे आए. हालांकि बीजेपी ने दादरी कांड सरीखी घटनाओं की निंदा की और अवार्ड लौटाने की परंपरा को सियासत से जोड़ा. बीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर उनके राज में कुछ घटनाओं पर साहित्यकार इस तरह विरोध कर रहे हैं तो 1984 के सबसे बड़े दंगों के वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया. लंबे अरसे से चल रही इस सियासी बहस के बीच जब आमिर खान ने चुप्पी तोड़ी तो 1984 के दंगों का जिक्र भी किया. Where one political party, in this case it's the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make what's happening now. And what happened in 84 was disastrous. You know, what happened in 1984 was horrendous, and what is happening, you know, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step, whether they're on the state level or at the center, make statements which are reassuring to us as citizens of the country. That's what we look for, yeah.
ये दलील तो वाजिब है कि दूसरे की कमीज काली बताकर खुद की कमीज उजली साबित नहीं की जा सकती। लेकिन आमिर पर सवाल उठाने वालों का तर्क है कि जिन हालात से आमिर कभी दो चार ही नहीं हुए, उन पर ऐसा सियासी बयान क्यों? वैसे इस मुद्दे पर सियासी रोटियां तो लंबे अरसे से सेकी जा रही हैं। यहाँ तक कि सियासी पंडित तो असहनशीलता पर इस बहस को ही बिहार में बीजेपी की शिकस्त का बड़ा कारण मानते हैं। ऐसे में जब आमिर ने इस बहस को नए सिरे से हवा दी तो सियासत भी शुरू हो गई। वैसे ये कम हैरानी की बात नहीं कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में मोदी सरकार और बीजेपी को घेरा, उसी सिलसिले में आमिर के बयान से कांग्रेस को इत्तेफाक नहीं। लेकिन आमिर के इस बयान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरा इत्तेफाक है। उन्होंने इस बारे में लिखे गए आमिर के ट्वीट को रीट्वीट कर अपना समर्थन दिया है। आमिर के बयान के बाद जिस तरह उस पर रिएक्शन आने शुरू हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि क्या वाकई ये सारी बहस देश के मौजूदा हालात पर हो रही है या कुछ घटनाओं के बहाने सिर्फ सियासत साधी जा रही है। आज तक ब्यूरो। एक सेलिब्रिटी के लिए, एक स्टार के लिए सबसे जरूरी है कि वो खबरों में बना रहे, क्योंकि अगर वो खबरों में नहीं रहेगा तो शायद उसको डर होता है कि लोग उसे भूल जाएंगे। क्या आमिर की यही कोशिश तो नहीं है? निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी